Hello students. In previous video we have learned about the role of nitrogen, and we have learned that nitrogen is consumed by the plants, or you can say it is essential for the growth of plants, and it helps to develop their fruits and seeds, and it also increases the size and quality of their leaves. So this is the importance. But the thing is that plants cannot absorb nitrogen directly from the air. वो डायरेक्टली एयर से नाइट्रोजन कंज्यूम नहीं कर सकते. First of all, nitrogen gas has to be changed into other form. After that, the plants can utilize it. So how it can change to other form? The bacteria present in the soil help to convert the atmospheric nitrogen into such specific form. So जो atmospheric nitrogen है उसको एक बैक्टीरिया है जो सॉइल में प्रेजेंट होता है, वो कन्वर्ट करता है स्पेसिफिक फॉर्म में जो कि प्लांट्स कंज्यूम कर सकते हैं. और वो फॉर्म्स क्या है? नाइट्रेट एंड अमोनियम सॉल्ट्स. एंड देन plants consume, or you can say absorb, these salts with the help of their roots. So this is a flow chart. Nitrogen from the air, then bacteria in the soil act on nitrogen. That means bacteria जो है soil में वो nitrogen को change करता है दूसरी form में, and nitrogen gets converted into specific form, that is nitrate and ammonium salts, and then it is consumed or absorbed by the plants for their growth. Now today we will discuss or learn how atmosphere act as a shield. Shield means protective layer. So our atmosphere also act as a shield, very much like an umbrella, to protect us from the harmful rays of sunlight. So sunlight is very important for all of us to live. Plants prepare their food in the presence of sunlight, but there are some harmful rays present in the sunlight. सनलाइट में हार्मफुल रेज भी होती है जो हमको हमारी स्किन को हार्म पहुंचा सकती है और हमको हार्म पहुंचा सकती है. सो हमारी जो एटमॉस्फेयर है उसमें वो क्या है, एक शील्ड की तरह वर्क करता है. जैसे कि अम्ब्रेला होती है, अम्ब्रेला क्या करती है, हमको रेन से बचाती है, वैसे ही एटमॉस्फेयर भी उसकी तरह वर्क करता है और हमको प्रोटेक्ट करती है. यू कैन सी हियर इन द पिक्चर, ये आपकी जो प्रोटेक्टिव शील्ड है और ये आपको हार्मफुल रेज जो सनलाइट की है उससे प्रोटेक्ट करती है. सो ओजोन गैस, we have learned that in the composition that there are different types of gases present in the air. So ozone gas is also there. Ozone gas present in the upper layer of the atmosphere. जो ओजोन लेयर है वो कहाँ प्रेजेंट है? अपर लेयर में, ऊपर प्रेजेंट है आपके एटमॉस्फेयर में, एंड prevents harmful ultraviolet rays of sunlight from reaching the surface of the earth. So जो ओजोन लेयर है, यू कैन सी हियर, ये जो आपका पिंक कलर की जो लेयर है शो करी हुई है यहाँ पर, तो ये आपकी ओजोन लेयर है. एंड ये क्या करती है, जो सनलाइट में हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट हार्मफुल रेज? दैट इज अल्ट्रावायलेट रेज. ये जो है हमारा अर्थ, इस रेज को अर्थ के सरफेस तक पहुंचने से रोकती है. सो ओजोन गैस प्रेजेंट इन अपर लेयर of the atmosphere prevents harmful ultraviolet rays of sunlight from reaching the surface of the earth. अर्थ पे ये हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज को पहुंचने से रोकती है. So what is the effect of these harmful ultraviolet rays? अगर ये ultraviolet rays अर्थ पे पहुंच जाए थे तो क्या
होता है. These ultraviolet rays can cause skin and eye diseases in animals and affect the growth of plants. So ये harmful जो ultraviolet rays है अगर ये अर्थ पे पहुंच जाती है so it affects both plants as well as animals. Animals जो है उनकी skin and eyes जो है वो इफेक्ट होती है, right? And it also affect the growth of plants. प्लांट्स की ग्रोथ भी इफेक्ट करता है. So ultraviolet rays is very harmful for plants as well as for animals. Thus, ozone layer in the air protects the animals and plants from the harmful effects of the ultraviolet rays present in sunlight. So सनलाइट में जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज है उसको ये यहीं पर रोक देती है. कौन? ये ओजोन लेयर. यू कैन सी हियर ये आपकी जो हार्मफुल रेज है ये आपकी यहीं पर ओजोन में रुक जाती है. बाकी जो है सनलाइट हमारी अर्थ पे पहुंचती है जिसकी वजह से हमको कोई भी नुकसान नहीं होता है. अदरवाइज अगर ये अल्ट्रावायलेट रेज यहाँ पर पहुंच जाए तो स्किन एंड आईज डिजीज भी हमको हो सकती है और प्लांट्स की ग्रोथ भी इफेक्ट होती है. एंड डू यू नो दैट जो ये ओजोन लेयर है इसमें पॉल्यूशन की वजह से एक बहुत बड़ा होल हो गया है और जिसकी वजह से ये अल्ट्रावायलेट रेज भी यहाँ पर पहुंच रही है. सो ये जो है अब हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज पॉल्यूशन ऑफ एयर. What is pollution of air? So we have now learnt about the importance of air for animals as well as plants. So why air is important for plants and animals that we have already learnt. So let us now see how we can find out whether the air that we breathe is pure or not. So जो एयर है हम ब्रीथ करते हैं सो दैट शुड बी प्योर. वो कैसी होनी चाहिए? प्योर होनी चाहिए. बट इट इज नॉट सो. सो वी विल डू सम एक्टिविटीज, डिस्कस सम एक्टिविटीज with its help we can find out whether the air that we breathe is pure or not. So observing the purity of air. So कैसे हम एयर की प्योरिटी को देख सकते हैं? So perform some simple activities at home to learn about the purity of air. So these activities you can do at your home. So in first activity what you have to do? Clean the blades of a ceiling fan. सबके घर में सीलिंग फैन होते हैं. You can see here the picture. Clean it, but observe it after a week, especially in summers. But nowadays there is a winter seasons और हमारे घर में सीलिंग फैंस नहीं यूज होते. So during summer seasons हम क्या कर सकते हैं? आपने ऑब्जर्व भी किया होगा कि अगर फैन को हम क्लीन कर देते हैं और उसके बाद उसको यूज करते हैं फॉर अ वीक और मोर देन अ वीक तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे आप? आफ्टर फ्यू डेज यू विल ऑब्जर्व दैट द ब्लेड्स ऑफ फैंस हैव बिकम डर्टी अगेन. आपके जो फैन का ब्लेड्स हैं उसमें क्या हो जाता है? डर्ट जो है वो जमा हो जाती है. दे गैदर डस्ट प्रेजेंट इन द एयर और जो डस्ट प्रेजेंट थी एयर में वो सारी इसमें क्या हो जाती है? इकट्ठी हो जाती है फैंस के ब्लेड्स के चारों ओर. तो ये आपने वैसे भी ऑब्जर्व किया होगा समर सीजन में क्लीन करती है मम्मा बार बार फैंस को और थोड़े दिन बाद वो फिर से गंदा हो जाता है. सिमिलरली अनदर एक्टिविटी, टेक अ पॉटेड प्लांट एंड वॉश इट्स लीव्स विद वाटर. सो आपके घर में भी प्लांट्स होंगे, आप उसको वॉश करेंगे उसके लीव्स को एंड कीप द प्लांट इन ओपन. Observe it for 3-4 days. The leaves of the plants will look dull and dirty after 3-4 days.
as they get covered with dust particles present in the air. So again हमने वॉश किया प्लांट को, क्लीन हो गए, बट आफ्टर 3-4 days व्हाट यू सी कि वो उसके जो लीव्स है वो डल हो जाएंगे, डर्टी हो जाएंगे, गंदे हो जाएंगे. व्हाई? बिकॉज जो डस्ट पार्टिकल्स हैं प्रेजेंट एयर में वो सारे उस पर क्या हो जाएंगे, इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे, वो कवर हो जाएगा डस्ट से और डस्ट पार्टिकल्स. एंड व्हाट यू कैन डू, आप अलाउ अ वेरी थिन रे ऑफ लाइट टू एंटर अ डार्क रूम. तो ऐसा आपने कई बार देखा भी होगा, डार्क रूम में जब थोड़ी सी लाइट आती है, सो व्हाट डू यू सी, dust particles present in the air is visible to us in the beam of light. और आपने इसमें dust particles उड़ते हुए आपको इसमें दिखेंगे. और ऐसा कई बार आपने देखा भी होगा, थोड़ा डार्क रूम होगा और उसमें अगर थोड़ी सनलाइट आ रही है कहीं से थोड़ी सी, तो उसमें आपको डस्ट पार्टिकल्स उड़ते हुए जरूर नजर आए होंगे. So these are some activity which shows that there are dust particles present in the air. So we will learn more about air pollution in our next video. Thank you.